السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللغة العربية اس کے بارے میں تمہیداً کچھ چیزیں جو ہم نے بیان کرنی تھی کہ زبان ہم کس علم کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے یہ، اور عربی زبان ہمارے لیے پڑھنا کیوں لازمی اور ضروری ہے، اس کی اہمیت، اور کسی بھی زبان کو پڑھنے کے ہمارے پاس کون سے طریقے ہوتے ہیں اور ان طریقوں کے فائدے اور نقصانات کیا ہے، اور ہم کون سا طریقہ اختیار کریں گے اس زبان کو سیکھنے کے لیے۔ یہ وہ تمہیدی باتیں تھی جو ہم نے پہلے درس میں بفضل اللہ تعالی سمجھی اور سیکھی۔ کل جہاں ہم نے اکتفا کیا تھا وہ تھا کہ یہ جو ہمارے پاس دو ٹائپس ہے، القاء اور تدریس۔ القاء میں آپ جو نیٹو سپیکرز ہو ان سے کسی زبان کو سنتے ہیں اور پھر اسی پیٹرن کو فالو کر کے انہی کے ورڈز کو سن کر ایک ایک کر کے ویسے ہی اس زبان کو بولنا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تدریس کا کہ آپ کسی زبان کے بیسک رولز کو سمجھتے اور ان کو یاد کرتے اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ وہ سیکھتے ہیں، پھر اس زبان کو بولتے ہیں آپ۔ تو ہم نے کہا تھا ہم ان دونوں کا ایک مکسچر پڑھیں گے، لیکن مین فوکس ہمارا تدریس پر ہی ہوگا، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ لغہ جامعہ یا فصحیٰ جس کو آپ کہتے ہیں، قرآنک عربک ان شارٹ، وہ آپ سیکھ پائیں گے، اور ہمارا جو ہدف ہے ٹارگٹ ہے اس کو ہم اچیو کر پائیں گے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھ پائیں گے۔ تو تدریس کے لیے ہم نے جو ابتدا کی تھی وہ تھی ہمارا لفظ، کہ لفظ ہم کہتے کس چیز کو ہے، اور پھر اس کی دو ٹائپس ہے، کلمہ۔ کلمہ کس چیز کو ہم کہتے ہیں، کس لفظ کو کہتے ہیں؟ لفظ ہم نے کہا تھا صوت، کوئی بھی ساؤنڈ۔ کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، لیکن عربی کے اعتبار سے ہم کہیں گے بامعنی عند العرب، بامعنی ہو لیکن عند العرب، ہاں معنی ہو لیکن عرب کے نزدیک ان کا اس لفظ کا معنی ہو۔ پھر ہم نے اس کی بھی دو ٹائپس دیکھی تھی کہ یہ غیر محتاج اور محتاج ہوتا ہے۔ غیر محتاج مینس کہ آپ ایک اسم کو یا ایک عفواً کلمے کو، اس کا جو معنی ہے کیا آپ وہ ڈائریکٹ سمجھ پاتے ہیں اسی ایک کلمے کی بنیاد پر، یا آپ کو باقی کلمے لانے پڑیں گے اس کلمے کی وضاحت کے لیے؟ کیا اپنا معنی یہ خود بیان کرتا ہے کلمہ کی نہیں؟ مثال کے طور پر کتاب، آپ کے پاس ایک ورڈ ہے کتاب، ٹھیک، جب ہم نے کتاب کہا تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ گئی، کوئی اور کلمہ آپ کو نہیں لانا پڑا تاکہ یہ کتاب کا مطلب آپ کو سمجھایا جا سکے، ٹھیک، یا سمجھانا پڑے ہم کو، ایسا کوئی اور ورڈ ہم کو لانا نہیں پڑا۔ لیکن اگر یہاں پر مثال محتاج کی اگر ہم ایک مثال دے دیں، الہ، الہ، الہ مینس ٹو، انگلش میں ٹو۔ اب آپ میں سے کوئی ٹو کو سمجھا دے کہ انگلش میں ٹو کیا ہوتا ہے، آپ کو لمبی چوڑی ڈیفینیشنز اور اس کے ساتھ خاص طور سے مثالیں بیان کرنی پڑیں گی تاکہ آپ اس ٹو کو سمجھا دیں۔ ایسے ہی ہم زیادہ سے زیادہ ٹو کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تک، ٹو، تک، تک کیا معنی ہوتا ہے، ٹھیک، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فرام ہاؤس ٹو دا مارکیٹ، اب یہ ٹو سمجھ آ رہا ہے،
वरना अगर आप कहेंगे सिर्फ मार्केट, मार्केट तो खुद भी समझ आता है। तो ये जो फर्क है कि अपना मतलब खुद ये वर्ड आपको समझा पाता है कि नहीं, उस एतबार से इस कलमे की दो किस्में हैं। एक को आप कहते हैं गैर मोहताज, इंडिपेंडेंट, दूसरा है मोहताज, डिपेंडेंट। ठीक। गैर मोहताज की आपके पास दो टाइप्स, इसम और फेल। और मोहताज की एक ही टाइप, वो क्या है, हर्फ। हर्फ हम समझ चुके हैं कि ये ऐसे ही वर्ड्स है जो अपना माना खुद समझा नहीं पाएंगे। इंग्लिश में आप इनको पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। लेकिन अब मसाला रह जाता है किस चीज़ का, इसम और फ़ैल का आपस में क्या फ़र्क है। वो मैंने कहा था, एक ही फ़र्क है, वो है वक्त की। क्या माना वक्त की फ़र्क, कि इसम में आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा वक्त के साथ, लेकिन फ़ैल में आपको वक्त के साथ अच्छा खासा रिलेशन मिल जाएगा। मिसालें हमने दोनों की दी थी। यहाँ इसम की आप मिसाल ही देख ले, किताब। आप ये नहीं, किताब से आपको ये समझ नहीं आया कि किताब थी, किताब है या होगी, बल्कि किताब, इसका कोई रिलेशन नहीं है वक्त के साथ। अगर आप फेल की मिसाल ले ले, खराजा, खराजा, खराजा माना वो निकला, खराजा, वो निकला। अच्छा, इसमें वक्त का कोई अमल दखल है? हाँ। क्या अमल दखल है? ये काम पास्ट में हो चुका है। निकला, निकल रहा है, निकलेगा। तो इस फ़ेल का ताल्लुक होता है वक्त के साथ। तो यही एक वो बेसिक वजह है कि आपके पास अरबी में पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ ये तीन है। इंग्लिश में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत मिलेंगे। वहाँ पर नाउन के साथ साथ आपको प्रोनाउन में मिलेगा, वहाँ पर आपको एडजेक्टिव भी मिलेगा, वहाँ पर आपको एडवर्ब में मिलेगा, वगैरह। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये चीज़ सवाल पूछे कि क्यों आपके पास अरबी में तीन ही पार्ट ऑफ स्पीच है और वहाँ पर इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच तीन से बहुत ज़्यादा है, इसका जवाब ये हो सकता है सिंपल अंदाज से, कि यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद देखी वो क्या थी। आप देखिए यहाँ पर फेल को आपको डिफाइन करने के लिए कहाँ से आना पड़ेगा। आपने कहना पड़ेगा कि ये एक साउंड होता है जो एक इंसान मुंह से निकाले, लफ्ज। हाँ। फिर उसका माना अरबी समझते हो, अपना माना वो खुद बयान कर पाए, लेकिन उसमें वक्त का अमल दखल भी हो, उसी कलमे को आप या उसी लफ्ज को आप फ़ेल का नाम देते हैं। अच्छा, जब आप वहां से यहाँ तक पहुंचे, कहीं पर आपने ये नहीं कहा कि ये वो लफ्ज है जिसमें काम होता हो। यहाँ इसम तक पहुंचने के लिए आप कहीं पर ये नहीं कहेंगे कि किसी चीज का नाम है। वहां पर आप बेसिस क्या रखते हैं कि नाम है, काम है, कोई किसी किसी नाम की अच्छाई या बुराई बयान हो रही है, किसी नाम के बदले कोई और वर्ड ला रहे हैं जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं, वगैरह वगैरह। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डेफिनेशंस है। यहाँ पर वो डेफिनेशंस और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास सिर्फ तीन है। ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम पहुंचे तो यहाँ पर ये चीज़ वापस हम रिकॉल कर दे। अगर आपसे कोई अब इसम की डेफिनेशन पूछे तो आपको ऊपर से ही आना है कि ये वो लफ्ज है जिसका माना अरब समझते हो, अपना माना खुद बयान कर पाए, और वक़्त का अमल दखल नहीं है, नहीं हो इसमें। आपने वो नहीं कहना है कि इसम कोई नाम होता है, वरना आपकी जो बुनियादें ही अगर गलत होंगी तो आप आगे जो है फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि इंग्लिश में, उर्दू में, ग्रामर में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस कैसे हो रही है, वर्ड्स के लिए अलग अलग चीज़ें क्यों बयान की जा रही है, कंडीशंस वगैरह रूल्स क्यों अलग है। अच्छा, अब हमारा काम क्या है ग्रामर के हिसाब से। चलिए, लफ्ज से हम लैंग्वेज को हमने क्योंकि कहा था ही अल्फाज, अब उन्हीं अल्फाज को हमने ब्रेक कर दिया तीन चीज़ों में, इसम, फ़ेल और हर्फ। अब हमारा टारगेट क्या है इसके बाद? टारगेट ये तीन प्लस एक और चीज़, यानी चार चीज़ें हैं। चार चीज़ें। पहली चीज़ कि हम देखें अरबी में इसम होता कैसा है, इसकी टाइप्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर इंग्लिश का नाउन है तो वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ओके, एक किस्म से उसकी क्लासिफिकेशन। फिर
वो मैस्कुलाइन भी होता है, फेमिनाइन भी होता है, होगी एक और क्लासिफिकेशन उसकी। इसी तरह से वो डेफिनेट भी होता है, इंडेफिनेट भी होता है। तो आप मुख्तलिफ अंदाज से एक नाउन को इंग्लिश में समझते हैं। तभी जहां आपको नाउन इस्तेमाल करना पड़ता है किसी सेंटेंस में इंग्लिश में, तब आप उसको सोच समझ करके इस्तेमाल करते हैं कि मुझे कौन सा किस टाइप का नाउन यहाँ पर लाना पड़ेगा। जब आप उसका मैस्कुलाइन या फेमिनाइन होना भी यानी जेंडर होना, जेंडर उसका डिफाइन करते हैं। हाँ, इस तरह सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है उस वो भी आप जानते हैं, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हैं। सेम यहाँ पर भी हमने अगर जुमले बनाने हैं तो आपको पहले एक एक लफ्ज पर जाना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच पर जाना पड़ेगा। पहला उसमें से इसम, आपको इसकी हर किसी अंदाज से खबर होनी चाहिए कि कैसा इसम इस्तेमाल एक जुमले में कर रहा हूँ। सेम वैसे ही फ़ैल के बारे में कि फ़ैल कैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद हर्फ कि कैसा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या कौन सा। हम इसम को फ़ैल को पढ़ेंगे, बेसिक हमारे यही दो टॉपिक्स है, हर्फ साथ ब साथ हम पढ़ते ही जाएंगे। और फिर आपका लास्ट एक टॉपिक बच जाता है। इसम फ़ैल और हर्फ को जानने के बाद, इसके बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल करने के बाद, आपके सामने आएगा एक और मरहला कि आप इन्हीं को एक साथ मिला करके कैसे देखेंगे। आप इन्हीं से सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, फ्रेजेस कैसे बनाएंगे, और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके पास कैसे, सिंपल सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके पास कैसे बनेंगे। तो उसके लिए हमने मुरक्कब मुरक्कब पढ़ना पड़ेगा। मुरक्कब मीन्स एक से ज्यादा वर्ड को एक साथ रखना, जिसको आप फिर जुमला भी कहते हैं। ठीक है, ताकि कोई सेंस आपको मिल जाए। तो हम जाते हैं अपने अब टॉपिक्स की तरफ, वो है इसम की क्लासिफिकेशंस। याद रखिए, हम बेसिक क्लासिफिकेशंस जो इसम की करेंगे वो चार होंगी, चार। लेकिन उन चार के बारे में ये ध्यान रखना है कि वो चार जो है इन सीक्वेंस हम पढ़ेंगे। पहली बेसिक है, बुनियाद है, आसान है। फिर उसके बाद दूसरी उससे थोड़ा मुश्किल है। फिर तीसरी उसमें ज़्यादा डिटेलिंग है, पहली दो को भी इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर जो चौथी है, उनमें पहली तीन को इस्तेमाल करके चौथी के साथ मिंगल करके अच्छा खासा एक टॉपिक आप पढ़ेंगे जो चारों का क्रक्स भी होगा। लेकिन गलती स्टूडेंट वहां करते हैं जहां वो फोर्थ क्लासिफिकेशन पर पहुंचे, तब उनको ख्याल आता है नहीं मुझे पहली पे ध्यान ज्यादा रखना था, क्योंकि वही बुनियाद थी। इसलिए ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ध्यान आपने पहले से ही रखना है और कंटिन्यूअसली फॉलो करना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमने जाना कहाँ है। तो हम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। जी, ये रही हमारी पहली क्लासिफिकेशन। इसम को हम क्लासिफाई करेंगे वुसअत के एतबार से। जैसे इंग्लिश में आपने जेंडर एक बेस मानी, फिर उसके हिसाब से नाउन को डिफाइन किया या क्लासिफाई किया, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। यहाँ पर भी हम कोई बेस समझेंगे। हाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास कोई होगी, फिर उसके बाद आप क्लासिफाई करेंगे और कहेंगे कि ये उसकी टाइप्स है फर्दर। लेकिन इससे पहले कि हम टाइप्स को देखें, पहले हमने ये बेस समझनी होगी कि किस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। मुख्तसर सा तारुफ, वुसअत। वुसअत एक टॉपिक है अरबी में। वुसअत मीन्स कि एक इसम जो भी आप अपनी जुबान पर लाएंगे वो कितना वसी होगा, कितना ब्रॉड होगा। हाँ, यानी जब आप एक इसम अपनी जुबान पर लाएंगे, ये कितनी चीजों पर इस ये अप्लाई होगा, इतलाक कितनी चीजों पर इसका होगा। क्या कोई एक चीज, या कोई, हाँ, कैटेगरी, या कोई क्लास, या कोई स्पीशी। ऐसा मिसाल के तौर पर मैं कहूँ
कलम तलवार से ज्यादा तेज है, हम कहते हैं कलम। तो इसमें कौन सा कलम आपके जहन में आया? प्रॉपर कोई नहीं, दुनिया का हर कोई कलम इसमें शामिल हो गया। लेकिन अब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज लिखनी है, मैं कहूंगा कलम कहाँ गया, कलम कहाँ गया। तो जो मैंने कलम अब कहा, ये दुनिया का कोई भी कलम नहीं है, बल्कि प्रॉपर और डेफिनेट कोई एक कलम मेरे जहन में है। ठीक, तो कलम मेरा कहना वहां अलग था और यहाँ अलग। किस एतबार से? कि इसका इतलाक कितनी चीजों पर हो रहा है। कलम दुनिया का कोई भी कलम हो सकता है, जब मैंने पहले सेंटेंस में कहा, और कलम दूसरा तब जो है मेरे जहन में कोई एक मखसूस इसम या कोई एक मखसूस चीज मुराद थी। तो ये वसअत के एतबार से क्लासफाई करना हुआ। तो इसमें आपके पास टाइप्स आते हैं नकरा और मारिफा। नकरा हम ऐसे इसम को कहते हैं जिसमें आपको कोई एक मखसूस प्रॉपर चीज जहन में ना आए, बल्कि कोई कैटेगरी आपके जहन में आ जाए। ठीक, पेन वो ज्यादा ताकतवर है तलवार से। तो अब कलम, ये पेन जो मैंने कहा कलम कहा, ये सारी स्पीशी ऑफ पेन्स को क्या करता है, अपने अंदर समेट लेता है, उसमें दाखिल कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कलम मैंने नकिरा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स है, मैं बुलाऊं हमजा, मैं कहूँ हमजा, तो हमजा ये भी एक किस्म है। तो मेरे हमारे जहन में दुनिया का कोई भी हमजा नहीं आया अभी, बल्कि मैं कहूँ हमजा, आप जवाब दो, तो कोई एक शख्स, हम सब के जहन में एक शख्स कोई आया, जिसको अब आप कहेंगे ग्रामेटिकली ये क्या है, ये मारिफा है। ठीक, नकिरा और मारिफा। इन शॉर्ट इंग्लिश में आप कहते हैं नकिरा को इनडेफिनिट और मारिफा को डेफिनिट नाउन। नकिरा इंडेफिनिट और मारिफा डेफिनिट। अच्छा, जो इंडेफिनिट नाउन यानी नकिरा है, उसकी आपके पास अरबी में दो टाइप्स हैं, इस्म जिन्स और इस्म सिफा। इस्म जिन्स जो अभी तक मैं कह रहा था वो वही है, इस्म जिन्स यानी किसी भी कैटेगरी स्पीशी का नाम। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ इश्काल रह जाता है, जिन्स जो वर्ड यहाँ लिखा है, ये जिन्स से मुराद जेंडर नहीं है, बल्कि जिन्स यानी कोई कैटेगरी। इस्म जिन्स यानी कैटेगरी का नाम, किसी क्लास का नाम। इस्म जिन्स मिसाल वही, किताब, दुनिया की कोई भी किताब हो सकती है। वलदुन, वलद मीन्स बॉय। अच्छा, कौन सा बॉय? दुनिया का कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन आपको ये तो समझ आया ना, पता है कि ये एक मेल्स का एज ग्रुप है, लेकिन कौन सा है वो आपको पता नहीं, कोई एक मखसूस लड़का आपके जहन में नहीं आया। फिर उसके बाद दूसरा है इस्म सिफा। इस्म सिफा मीन्स कोई भी अच्छाई या बुराई, कोई भी एट्रीब्यूट, जिसको आप इंग्लिश में अलग पार्ट्स, अलग एक आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच इसके लिए है एडजेक्टिव। ठीक, कोई भी अच्छाई या बुराई, मिसाल के तौर पर जमील। जमील मीन्स खूबसूरत, जमील खूबसूरत। अच्छा, जब आपने कहा जमीलुन खूबसूरत, तो कौन आपके जहन में है? खूबसूरत, ये तो एक ऐसा इस्म है, अरबी में इस्म है। क्यों इस्म है, इसको भी वापस रिकॉल कर दे कि वरना तो इंग्लिश या उर्दू के एतबार से आपको लगेगा ये तो कोई नाम ही नहीं है किसी का, फिर इस्म कैसे हुआ? लेकिन अरबी में इस्म है। कैसे? पहला ये कि अरब इसका माना समझते हैं, अपना माना ये खुद बता रहा है, जमीलुन यानी खूबसूरत होता है। और फिर इसमें वक्त का अमल दखल नहीं है, जब वक्त का अमल दखल नहीं है तो इसम हुआ। अच्छा, अब कौन सा इसम है नकिरा के अंदर? आपका आ गया ये इसम सिफा। तो अब कोई मखसूस एक चीज भी आपके जहन में नहीं आ रही है जब आप कहते हैं खूबसूरत, तो कौन सी टाइप होगी ये? नकिरा। नकिरा, नकी मारिफा। इस तरह कदीमुन, पुराना, ये भी नकिरा है, कोई एक चीज मखसूस चीज आपके जहन में नहीं आ रही। और यही दो टाइप्स है इस नकिरा की, इस्म जिन्स और इस्म सिफा।
ये नकरा ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा जब आप मारिफा पढ़ेंगे। अब आइए इसी की तरफ, मारिफा। मारिफा मीन्स, हमने कहा मारिफा होता है डेफिनेट। जब आप कोई इसम अपनी जुबान से बोले, आपको कोई एक मखसूस चीज या मखसूस कोई चीज जहन में आपके आ जाए। मैंने अभी कहा हमजा। हाँ, हमजा बहुत अच्छा पढ़ता है। अब दुनिया का कोई भी लड़का नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, बल्कि एक मखसूस शख्स आपके या इसम आपके जहन में आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा मारिफा, तो मिसाल भी जिसकी मैंने दी ना, वो है ये टाइप, अलम। अलम मारिफा की पहली टाइप है, अलम। ये अल इल्म नहीं लिखा है वहां, अल अलम है। अलम का वही माना है जो आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन का समझते हैं, किसी भी खास जगह का, खास चीज का, खास शख्स का नाम। अलम असलुल मारिफा है, एक्चुअल मारिफा यही आलम है। क्या मुराद? मुराद ये है कि जब आप किसी भी खास शख्स, चीज, जगह के बारे में बात करें, वही तो आपके पास पर्टिकुलर होता है, वही तो आपके पास प्रॉपर होता है। इसीलिए आलम ही एक असलुल मारिफा, यानी मारिफा की असल यही आलम है। अब देखिए मिसाल हम मैंने यहाँ लिखी है कुछ। मैंने कहा मक्का। अगर मैं कहूँ शहर, शहर, शहर दुनिया का कोई भी हो सकता है, लेकिन अब अगर मैंने कह दिया मक्का, ये दुनिया का कोई भी शहर नहीं, बल्कि एक मखसूस जगह आपके जहन में आ गई। एक और दे दे मिसाल, मैं कहूँ काबा। काबा, अच्छा, जब हम काबा कहते हैं तो काबा ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी जो है इसम जो मैंने कह दिया किसी भी चीज पर इसका इतलाक हो जाएगा, नहीं, बल्कि एक मखसूस चीज मेरे जहन में आ रही है, इसको कहते हैं आप आलम, प्रॉपर। इस तरह हामिद किसी भी खास शख्स का नाम, यहाँ पर है आबिद। मिसाल, आबिद शफी। मैं कहूँ आबिद, ये दुनिया की किसी भी आबिद की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरे जहन में कोई एक मखसूस शख्स या चीज आ रही है, मखसूस चीज आ रही है मेरे जहन में, तो मैं कहूँगा उसको आलम। इस तरह मैंने और मिसालें लिखी है यहाँ, श्रीनगर वगैरह। तो इसके बाद इसके तहत, आलम के तहत और चीजें भी आती है। पहली है इस्मुल इशारा, ऐसे नाम जिनसे आप इशारा करते हैं। जब आप किताब पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे हाजा वर्ड दिस के माना में इस्तेमाल होता है। ये जब आप किसी चीज की तरफ इशारा करना चाहे तो आप कहते हैं हाजा, हाजा। अब सिंपल सा सवाल है कि हाजा कैसे प्रॉपर है? अगर मैं कहूँ दिस प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, नॉर्मली तो लगता है इम्प्रॉपर है या इनडेफिनेट है, लेकिन ये डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि हाजा आप ऐसे नहीं, मतलब जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाजा मेरा किसी की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो रही है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज की तरफ इशारा करके बोले हाजा, कब बोलेंगे? जब मैं किसी दोस्त के सामने रखूं, हाँ, कलम और कोई किताब, मिसाल के तौर पर कलम और किताब मैंने उसके सामने रख दी, मैं कहूँ दोनों में से जो चीज आपको पसंद है वो ले लो, वो आपकी, तो वो क्या कहेगा? इशारा करके कहेगा हाजा। ये उसका ये हाजा कहना दुनिया की किसी भी चीज के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर, और उसके जहन में और मेरे भी जहन में कोई एक मखसूस चीज आ रही है। ठीक है? इस तरह जो भी इसमें इशारा होंगे, यानी जिनसे आप इशारा करते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? मारिफा। अच्छा, एक सवाल वापस यहाँ पर हमारे लिए उठेगा, वो है कि हाजा इसम कैसे है? दिस, दिस तो कोई इसम लगता नहीं है, नाउन नहीं लगता, लेकिन अरबी ग्रामर के हिसाब से है। क्यों? देखो, ये एक लफ्ज है, अरब इसका माना समझते हैं, होगी दो, अपना माना खुद समझा पाता है ये। जब कहने वाला कहे हाजा ये, तो आपको बात समझ आ गई ना कि ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है।
हो गई 3। फिर चौथा और लास्ट जो था कि क्या इसमें वक्त का कोई अमल दखल है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, हाजा में कौन सा वक्त का अमल दखल, तो उस एतबार से फ़ैल नहीं है ये, तो क्या रहा, इसम। तो हाजा अरबी में इसम है, और इंग्लिश में दिस इसम नाउन नहीं है, बल्कि वो वहां पर प्रोनाउन है, और आप उसको वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से बुलाते हैं। आप उसको छोड़ दें इंग्लिश को, मगर अरबी की जो बुनियादें हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करें कि अरबी में हाजा इसम है। बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, वो कहेंगे हाजा इसम इशारा है। जब ये पूछा जाएगा कि क्यों आपको इसको इसम कह रहे हो और डिफाइन समझाओ कैसे इसम है, तब अक्सर की जो है बात उसके बाद नहीं निकलती, चुप करते हैं, पता नहीं होता बेसिस क्या है हमारी। तो ये आप कहोगे इसमें इशारा। उसके बाद है वमाइर। वमाइर मीन्स प्रोनाउंस। प्रोनाउन किसको आप कहते हैं, जब आप कोई, अगर हम, जो मैं इंग्लिश की बात क्यों कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने जो उर्दू है, कश्मीरी है, उसका ग्रामर जो है बहुत कम पढ़ा होता है, इंग्लिश का रेस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है, ठीक। तो जो चीज़ रिलेटिव है आपके जहन के लिए, उसकी हम मिसाल देते हैं। तो वमाइर या प्रोनाउंस ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप जिन को आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई नाउन आया है उसकी जगह पर, इन रिप्लेसमेंट टू द नाउन। नाउन की जगह पर आप किसी ऐसे वर्ड को रखते हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है। मिसाल के तौर पर आपका कहना, खालिद इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन बाटामालू। अब एक बार आपने कहा खालिद इज माई फ्रेंड, आप नहीं कहते हैं खालिद लिव्स इन बाटामालू, बल्कि इस खालिद वर्ड को रिप्लेस करते किसी और वर्ड से, ठीक, आसानी के लिए। कलाम का उसलूब ऐसे ही है, बात ऐसे ही की जाती है। तो जिस वर्ड से आपने इसको रिप्लेस किया उसको आप प्रोनाउन या ज़मीर का नाम देते हैं। और याद रख ले, अरबी की जो ज़माइर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेस लगा करके कह रहा हूँ। इन्हीं की बुनियाद पर अरबी की जो हम खसूसियात बयान करते हैं, अरबी क्यों ज़्यादा आगे ज़ुबान है बाकी ज़ुबानों से, अल्लाह ने क्यों इसको इस्तेमाल किया अपने जो है कुरान के लिए या अपने कलाम के लिए, इसकी कलाम में, इसी ज़ुबान में कलाम फरमाया। तो उसकी जो वजूहात हमारे सामने आती है, उनमें से एक वजह है ये ज़माइर, ठीक। तो अभी इन शॉर्ट हम याद रख ले, ये ज़माइर भी हमारे पास प्रॉपर होती है एक ही मखसूस चीज़ के लिए। क्यों, जब आपने कहा मिसाल खालिद इज़ माई फ्रेंड, ही, अब जो ये ही है ये किसी भी शख्स के लिए नहीं है, या दुनिया की किसी भी इसम के लिए नहीं है, बल्कि ये इस उसी हामिद के लिए या उसी खालिद जिसका भी मैंने नाम बोला, उसी के लिए ये वहां पर रखा गया है। जैसे खालिद वर्ड ऊपर जो है प्रॉपर था, सेम वैसे ही ये ही वर्ड जिसके बदले अरबी में हम हुआ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये हुआ जो आप ही के रिप्लेसमेंट में जैसे अरबी में, ये भी वैसे ही प्रॉपर होगा। हुआ मीन्स ही और किया मीन्स शी, अपनी जगह पर यह इंशाल्लाह हम तफसील से सारा पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा आपकी जहन इसकी तरफ मुतवज्जह कर लें। अब इसके बाद आता है हमारा इसमें मौसूल। इसको अभी आप छोड़ दें, इंशाल्लाह इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसमें मौसूल क्या है और मारिफा कैसे है। एक टाइप है मुजाफ। मुजाफ, मुजाफ मीन्स, हमने कहा मिसाल किताब, ठीक है, आपको पता है किताब दुनिया की कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन अभी हमारे लिए यहाँ पर कोई हम में से बंदा है हमजा, मैंने कहा, तो मैं कहूँ हमजा की किताब, क्या अब अभी भी ये किताब दुनिया की कोई भी किताब है? नहीं।
बल्कि ये एक मखसूस किताब की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे और आपके जहन में है। हमजा की किताब कहाँ है? ठीक, हमजा की किताब। ये किताब वर्ड कैसे मारिफा मेरे लिए बना, कैसे प्रॉपर बना? इजाफत से। मैंने एक चीज की पोजीशन दिखाई कि ये दूसरे को बिलोंग करता है। ठीक, तो उससे ये एक नकेरा लफ्ज मारिफा बन गया। किताबु मिसाल हामिद अगर मेरे लिए मारिफा है, जो हमने ऊपर यहाँ दिखाया था, अगर वो मेरे लिए मारिफा है तो किताब भी मारिफा बन जाएगा। तो मेरा कहना किताबु हामिदिन, अरबी में कैसे कहते हैं इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हामिद की किताब, उसको अरबी में कहते हैं ऐसे, किताबु हामिदिन, तफसील से वो सारा आ रहा है। किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। ये किताब भी मेरे लिए डेफिनेट बन गया और मारिफा बन गया। फिर इसके बाद एक और है, वो है ये वलदुन का लफ्ज आपने देखा था। वलदुन मीन्स बॉय, लड़का। अच्छा, कौन लड़का? दुनिया का कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन अब अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में करूं, ये कहूं, ऐसा करूं, ए लड़के, तब आप सोचे क्या ये दुनिया का कोई भी लड़का होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई मखसूस लड़का होगा जिसको मैं बुला रहा हूं। तो जो तब मेरा यहाँ पर वलद कहना होगा वो प्रॉपर होगा मेरे लिए। वो कोई इनडेफिनेट वर्ड नहीं है, कोई इनडेफिनेट चीज नहीं है, बल्कि डेफिनेट कोई चीज है, कोई डेफिनेट इसम मेरे लिए होगा। आप उसको कैसे कहते हैं? या लगा करके। या मीन्स, जो आप उर्दू में ए, ओ, इंग्लिश में ओ बॉय, या वलद, ए लड़के। ठीक है, तो वलदुन नकेरा है, लेकिन या वलद क्या है? मारिफा। या को छोड़ दे, या की हम बात नहीं करें असल में। वलद, जो या के बाद वलद आए या रजुल आए या कोई भी इसम आए, तो वो आपके पास प्रॉपर बन जाएगा। ये एक थोड़ा सा इसका इहाता हम कर रहे थे नकेरा और मारिफा। अगर किसी को लगता है कि ये बर्डन हो रहा है, ज़्यादा है, इतना कैसे याद रहेगा, मसला वो नहीं है कि आप इसमें से कितना याद रख ले। मसला ये है कि आपको कंसेप्ट समझ आया नकेरा और मारिफा का। फिर इसके बीच में क्या है, कितनी चीज़ें हैं, ये भी है, ये नहीं है, वगैरह, ये वो है। तो वो चीज़ें आपके लिए आगे आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। ठीक, तो अब इसमें एक और चीज़ लास्ट की रह जाती है, उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा तफसील से। पहला है कि जब भी आप कोई इसम बोले अरबी में, मिसाल के तौर पर आप उर्दू में कहते हैं किताब, इसको अभी के लिए और हर हमेशा के लिए सीख ले। हर किसी जुबान का अपना अपना जो है डायलेक्ट हो या पैटर्न होता है बोलने का। तो अरबी में एक बेसिक रूल है कि हर किसी इसम में बाय डिफॉल्ट दो पेश होते हैं। अरबी में हम किताब नहीं कहते बाय डिफॉल्ट, हम कहते किताबुन। कलम नहीं कहेंगे, कलमुन। हामिद नहीं कहेंगे बल्कि हामिदुन। ये बेसिक है। फिर अगर आप इस पर, इसी किताब पर, इस किताब के बारे में कहना चाहेंगे कुछ, मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते किताब नई है, कैसे कहेंगे? उसके बाद नई, न्यू, उसके लिए कोई वर्ड होगा अरबी में, वो क्या है? जदीद। किताबुन जदीद हम उर्दू में भी कहते हैं, जदीद मतलब कुतुब खाना। तो जदीद ही नहीं कहेंगे बल्कि जदीदुन, किताबुन जदीद। किताब के बारे में अब बात करना चाहते हैं, वो क्या है? नहीं। लेकिन एक और मसला है इस दो पेश के साथ। ये दो पेश, तनवीन, हम में से हर कोई जानता होगा, नूरानी कायदे तो हम में से हर किसने पढ़ा होगा। तनवीन अलामत होती है इसम के नकिरा होने की, कि वो अभी नकिरा है। यहाँ पर भी नकिरा,
किताब और यहाँ पर भी जदीद दोनों नकेरा है। लेकिन जब ही मैंने इस किताब के बारे में बात कर दी, तो क्या ये दुनिया की कोई भी किताब है, आप कोई मखसूस किताब है? जब मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में किताब नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये दुनिया की कोई भी किताब नहीं होगी, बल्कि कोई एक मखसूस किताब होगी जो मेरे सामने है और नई मुझे लग रही है, और मैं उसके साथ के बारे में बात कर रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ कि वो क्या है, नई है। ठीक। अब इसको अरब कैसे दिखाते हैं? वो ये काम करते हैं कि इस तनवीन को, चलिए पहले तनवीन की बात छोड़ते हैं, इस मारिफा को दिखाते हैं वो अलिफ लाम लगा करके, अली। और अल का वही माना है जो इंग्लिश में द का है, द। वो कहते हैं अल किताबुन जदीदुन। लेकिन अभी मैंने चूंकि कहा ये तनवीन अलामत होती है नकिरा होने की। अब अलिफ लाम लगाकर ये नहीं कह सकता मैं कि ये मारिफा है और तनवीन लगाकर कि ये नकिरा है, बल्कि मैं ये तनवीन हटा देता हूँ और फिर कहूँगा अल किताबु जदीदुन, किताब नहीं है, किताब नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो वापस दोहराने की ज़रूरत हमको है, वो ये कि किताब वर्ड तो मेरे पास था, मैंने उसके बारे में जदीदुन कहा, मैंने कोई खबर दी। ठीक, कोई खबर दी। अब जिसके बारे में मैंने खबर दी वो प्रॉपर बन गया, किताब प्रॉपर बन गया। उस प्रॉपर को दिखाया अरब ने अलिफ लाम लगा करके, और जो नकिरा की अलामत तनवीन थी उसको हज़फ कर दिया। अच्छा, जिसके बारे में ये कह दिया मैंने, यानी बात की, खबर दी, उसको अरब लोग कहते हैं कि यह है मुब्तदा। मुब्तदा, मुब्तदा होता है वो इसम जिसके बारे में आप बात करें, खबर वो इसम जो बात आप करें। अब ये किताबुन बिजाती ही नकेरा था ना, अलिफ लाम लगा करके मारिफा बना, इसलिए इसको भी हमने यहाँ पर रखा है। इंशाअल्लाह ताला बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे, या इसी को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मुब्तदा और खबर इस पैटर्न पर, ग्रामर के तौर पर कहीं और ये आ जाएगा तफसील से। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हमको ज़्यादा तौफीक दे समझने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।